Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and good afternoon. Hope the greetings will find you in good health and spirit, and you are getting along with your studies. And we are hoping that you are doing well in your studies. We have started reading your chapter number 9. It's page number 498. And the theme around which the story is going to move around is taking care about something, or how do we show that we care about something, and how people generally take care of others. Generally, human beings get jealous or get some sort of envious or grudges in their hearts, which is not supposed to be a trait of a believer. So this let's first talk about the Holy Prophet. What does he says about taking care of or thinking about others? In one of the traditions of the Holy Prophet, caring for others is so important that the Holy Prophet says, Sallallahu Alaihi Wasallam said, one who gets up early in the morning and is not concerned about the other affairs of others Muslims is not a Muslim. अगर किसी को दूसरों के आप मसाइल के बारे में कोई फिक्र ना हो तो वो मुसलमान नहीं है. तो अब देखिए, हम दावा करते रहते हैं ना, हम ये हैं जी, हम वो हैं जी, हम फलान जो, हम फिस्तान जो किया, जब तुम्हारे पैगंबर की इतनी सख्त रूल है. तो देखते हैं. Let's get started with we have started reading with this. You are supposed to, suppose you have been asked what sort of things do you share with your siblings and friends, what sort of things that you can you want to share with other people who don't have all these things, all those luxuries or delicacies, and how sharing is important is the another question you have been asked. You are supposed to fill in this box you given in your book. Now let's get started with the story, and if you can't fill up at the moment, you can fill it in at the end of the story. You can think about it. The story is about a girl by the name of Ju. Ju is a young girl. Let's revise. We have just introduced you about the what is actually going in the story. Ju is a young girl who lives with her mother. आप देखो, आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो जू इस लगाया है, यंग गर्ल है, से बताया कि वो एक जवान लड़की है. वो क्या है, क्योंकि वो अब 3 चीज़ें शो करता है जिसमें, ठीक है. दूसरा, वो रहती कहाँ है, who lives with her mother, माँ के साथ रहती है. her father had been killed, अब पास में है उसके वालिद का एक्सीडेंट, उसके वालिद मारे गए थे इन ए ट्रेजिक एक्सीडेंट. ट्रेजिडी आपको बोला अलमिया कहते हैं. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द इवेंट्स ऑफ करबला इज वन ऑफ द ट्रेजिक and one of the riveting anecdotes or the tales, story that you and we have been hearing since our childhood. हम आप सुन रहे हैं बचपन से. So this is called tragic, जिसमें क्या होता है, actually the meaning is taken from tragedy. This word is an adjective. tragic accident बोला, accident tragic था. अब ट्रेजेडी क्या होता है, इससे ट्रेजिक निकला है. तो ट्रेजेडी होता है इन विच समवन सफर्स ए बिग मिसफॉर्चून, बड़ा बदकिस्मती होता है या बड़ा नुकसान होता है, या वेरी सैड, बहुत दुख भरा जो है कहानी हो जाता है. तो कुछ साल पहले उसकी डेथ हो गया. हर मदर इस, अब उसकी माँ सिंगुलर है, तो देखो उसकी माँ है ए डोमेस्टिक हेल्प, एक घरेलू मदद है उसके लिए. और क्या है, एंड सो मेनी थिंग्स दैट जू यूजेस. अब जू इस्तेमाल करती है, यहाँ पर डैश यूज़ किया है, फिर एक्चुअली जू यूजेस आर हैं, तो ये एक्स्ट्रा जो होता है डैश यूज़ करके, या आप हाइफन यूज़ करते हैं, सॉरी कॉलन यूज़ करते हैं जब आप कोई लिस्ट करते हैं चीज़ों को. तो टेक्स्ट बुक, स्कूल बैग, इस तरह से वो क्या है ना, सेकंड हैंड. तो ये देखो कंपाउंड वर्ड में आप हाइफन यूज़ करते हैं. डैश और हाइफन में क्या फ़र्क है, ये लंबा होता है, ये बिल्कुल छोटा होता है, और वर्ड्स के बीच में गैप नहीं होता है, इसमें गैप होता है, ठीक है, हल्का सा. तो सेकंड हैंड होती हैं, यानी दूसरों की चीज़ें होती हैं. हाउएवर जू लुक्स आफ्टर, अब जू सिंगुलर है तो लुक्स आफ्टर, हालांकि वो ख्याल रखते हैं ऑल हर थिंग्स वेल, अच्छी तरह से, एंड इज चीयरफुल गर्ल एंड प्रैक्टिकल गर्ल. अब वो चीयरफुल है और प्रैक्टिकल है, मतलब क्या है कि वो दूसरों से उम्मीद नहीं रखते, वो खुद अपना काम खुद करती है. उसको पता है कि ज़िंदगी कैसी चलती है, क्या हो रहा है, क्या उसकी माँ करती है, वगैरह वगैरह सब पता है उसको. तो इस तरह की बच्ची है और हर चीज़ का ख्याल भी रखती है. अब देखो, जून नेवर थॉट ऑफ द गिफ्ट्स. अब जू नेवर थॉट ऑफ द गिफ्ट्स, कभी नहीं सोचा. देखो पास में है नेवर थॉट, नेवर नेगेटिव बनाने का नेवर भी यूज़ करता है.
ठीक है। नेवर थाउट ऑफ द गिफ्ट्स शी रिसीव्ड, जो उसको मिले हैं एज बीइंग ओल्ड, ठीक है, जो वो रिसीव करती उसको कभी पुराना नहीं समझती थी। दे वेयर एंटरिंग हर लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में वो पहली बार शामिल हो रहे होते हैं, दाखिल हो रहे होते हैं। एंड देयर फॉर दे वेयर ब्रांड न्यू, एंड ब्रांड न्यू का मतलब होता है एकदम नए होते। एज फॉर एज शी वॉज कंसर्न, एज फॉर एज शी वॉज कंसर्न यानी फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी नज़र से अगर देखा जाए। एज फॉर एज आई एम कंसर्न, एज फॉर एज यू आर कंसर्न, तो आप समझ रहे हो, अगर जितना कि मेरा ताल्लुक़ है उसकी नज़र में, उस तरह से इस बात को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, जितना कि उसका ताल्लुक़ है उसकी नज़र में क्या है, वो एकदम नए हैं और उनको कभी पुराना नहीं समझते, क्योंकि वो ज़िंदगी में उसके पहली बार शामिल हो रहा है उसके लाइफ में। आगे क्या लिखा है, शी फेल्ट, उसे एहसास होता, एज इफ़ शी वेयर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, उसको लगता जैसे कि वो, एज इफ़ होता है यानी मानो कि वो, या मानो कि, या जैसे कि बोल सकते हो आप। शी वेयर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, अब देखो कंटिन्यूअस में है, तो शी वेयर, अब सर यार शी वॉज बट शी वेयर चेजेस, क्योंकि ये इमेजिनेटिव है, ठीक है, इसलिए जब भी इमेजिनेटिव सेंटेंस होता है, आई वेयर, शी वेयर, सबके साथ वेयर लगता है। तो शी फेल्ट, उसे ऐसा महसूस होता है, एज इफ शी वेयर मेकिंग, यानी वो फ्रेंड्स तो नहीं बना रही है, ऐसा लगता है उसको सिर्फ, तो वो इमेजिन कर रही है। नॉन रियल जो सेंटेंस होता है उसको वेयर के साथ बनाता है। शी वेयर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, जैसे लगता है कि उसे वो दोस्त बना रहे हो, ठीक है, रही हो। दैट वॉज वाई, इसीलिए, दैट वॉज वाई पूरा होता है, इसीलिए शी डिड नॉट क्रॉस आउट द नेम्स ऑफ द ओरिजिनल ऑनर्स, तो वो कभी भी पुराना जो ओरिजिनल जिसका ये क्योंकि वो सेकंड हैंड चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उस पर अगर किसी ने नाम वाम लिखा हो तो उसको वो कभी नहीं काटती थी। ऑनर्स ऑफ द बुक्स बिफोर राइटिंग हर आउन नेम, अपना नाम लिखने से पहले वो मसलन यहाँ पे किसी का नाम लिखा तो उसको कट आउट नहीं करती थी। विच वॉज पी आर मंजू, जो क्या थी, पी आर मंजू, यानी उसका अपना नाम था। पोमराथिल रामू मंजू उसका पूरा नाम था। अब पोमराथिल वॉज हर फैमिली नेम, ये उसके फैमिली ख़ानदानी नाम था। मीनिंग, जिसका मतलब क्या था, अपॉन द फ्लावरिंग ट्री, ठीक है, यानी अपॉन द फ्लावरिंग ट्री यानी जिस दरख्त पे फूल लगते हैं उसके ऊपर। रामू वॉज हर फादर्स नेम, रामू उसके फादर का नाम था। दिस ईयर, इस साल, मंजू वॉज मूविंग अप टू क्लास 8 में जा रही है डिवीज़न बी में, ठीक है। अब देखो, एवरी वन कॉल्ड हर जू, हर कोई उसको जू कह के बुलाता, बिकॉज दैट इज़ हाउ हर मदर कॉल्ड हर, क्योंकि इस तरह से दैट इज़ हाउ हर मदर कॉल्ड हर, इस तरह से उसकी माँ क्या करती थी, उसको बुलाया करती थी। जू थाउट हर मदर रेशेंट हर नेम, रेशेंट हम यानी क्या किया है, शॉर्टेंड है, उसने छोटा कर दिया है उसके नाम को, ठीक है, टू मेक इट लिटिल फनी, आज को मज़ा है फिलहाल खाची आज उनसे मीनिंग रखूँ जिस पे मीनिंग इस तरह की बात कर रहा है। यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, फनी वे सेइंग दैट जूस मदर शॉर्टेंड हर नेम सो दैट मंजू वुड नॉट बी यूज इट टू ऑफन, ताकि वो उसका मंजू बार बार ना बोलना पड़े, तो उसको जू रखा उसके माने। हर नेम टू, उसके नाम को भी क्या कर दिया है, फनी बना दिया है, यानी शॉर्टन कर दिया है। लाइक शी डिड राइस, जैसे कि वो चावल के साथ करती, दाल के साथ करती, साल्ट, सोप, ऑयल एंड सो, बाकी चीज़ों के साथ, मतलब कम कम रखती, छोटा छोटा, मतलब कम मकदार में होती बाकी चीज़ें, इसकी बात कर रहा है। इन एनी केस, किसी भी हालत में, शी लाउड बीइंग कॉल्ड जू, वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है कि उसको जू बुलाया जाए, बिकॉज मोस्ट पीपल रिमेंबर इट ईजिली, क्योंकि अक्सर लोग इसको क्या करते हैं, आसानी से याद कर लेते थे। देयर वर सम पीपल हु आस्क्ड हर इफ़ इट वॉज ए हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम नेम। अब कुछ लोग पूछते कि हिंदू नेम है, मुस्लिम नेम है, क्रिश्चियन नेम है, नेम अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन you should know that the first infallible Imam Ali alayhi wasalam, when he sent Malik Ashtar towards Misr for governorship, he handed him over a letter in which he wrote that people are of only two types, either they are your brethren in your beliefs or a creature of the same the one and only Almighty Allah। तो मतलब क्या है कि कह रहे थे कि मालिक अश्तर को लिख के दिया मामले ने कि इंसान सिर्फ दो तरह के हैं, या तो तुम्हारे मोमिन भाई हैं, ईमान में भाई हैं, या तो खुदा की मखलूक है। तो देखो, क्रिश्चियन में तो डिवीजन करना ये शैतानी काम होता है। मगर यहाँ पे पूछा गया था कि वो लोग पूछते हैं कि उसका हिंदू नाम है, मुस्लिम नाम है, क्या नाम है, तो क्रिश्चियन ने मुस्लिम ने ऐशी रिप्लाइड, और उसको जवाब देता वो, इट्स जस्ट ए नेम, ये तो सिर्फ एक नाम है, एपिस्ट्रोफी आपको पहले बोला था, ये तो एक सिर्फ नाम है, कह के वो उनको रिप्लाई करती है। अच्छा, उसके बाद ये पैराग्राफ करते हैं। ऑफ कोर्स देयर वर साइज प्रॉब्लम्स विद द ओल्ड ड्रेसेस, अब जो पुराने ड्रेस होते थे उनके साथ साइज प्रॉब्लम तो होना था।
स्कर्ट्स वेयर टू टाइट, स्कर्ट्सों मध्य आपके कपड़े जो होते हैं जो यूनिफॉर्म है उस बहुत टाइट हो जाते हैं, और टू लॉन्ग या कुछ बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। एंड ब्लाउजेज वेयर टू लार्ज, जो पैजामे होते हैं वो या तो बहुत लंबे हो जाते हैं या फिर टू शॉर्ट हो जाते हैं। बट मधु जो माँ मधु है, जूस मदर, जू की माँ है, वुड बेग अली, वो इल्तिजा करती अली नाम के आदमी से, विथ होम जूस फादर हेड शेयर, जिसके साथ जू के फादर शेयर करते थे, यानी वो काम को बांट कर काम करते थे। टू ऑल्टर देम टू स्वीट जू, ताकि वो उसको क्या कर दें, ऑल्टर कर दें यानी चेंज कर दें, ताकि वो सूट करे किसको, जू को। ठीक है, keep it till here, we will continue it in our next class. I hope you got it. Thank you for your kind attention. Till then, take care, goodbye, khuda hafiz.